Namaskar, Anil ji. Thank you so much for नमस्कार जी, joining us. नमस्कार। नमस्कार, Thank you कैसे हैं? so much for joining another session of Daryaganj Study Circle. This is a web थैंक यू। session, non-CPE structured session है, लेकिन the relevance of this session is very important as we will be covering nuances of the notifications that have been brought under Money Laundering Act, which make we the professionals a reporting entity. दो नोटिफिकेशन आए हैं। 3 मई को भी एक नोटिफिकेशन आया था, देन देयर वाज अनदर नोटिफिकेशन ऑन 9 मई। स्कोप दोनों का डिफरेंट है, क्वेरीज काफी सारी है लोगों की कि कैसे इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो आपसे ज्यादा सर इस एरिया के बारे में जो सीए भी हैं एंड एडवोकेट भी हैं, हु सेलिंग इन बोथ द बोट्स, आई डोंट थिंक देयर कैन बी अ बेटर speaker on this topic. You have been past chairman of NIRC of ICI, a very honorable member and a very robust professional, and specifically dealing day in day out on these matters. So, sir, thank you for joining us once again. थैंक यू पारस जी, थैंक यू बिंदल जी, एंड थैंक्स फॉर यू स्पोकन गुड वर्ड अबाउट मी। पारस जी, who is convener of Daryaganj Study Circle, Binder Saab, who is deputy convener of Daryaganj Study Circle, and they both are very competent, not only in organizing and managing the seminar, but to analyze in depth the particular subject also. I have observed. Thank you so much. My request to Paras ji and Bindal ji, notification which is the first notification on 3rd and on 9th, you both, whenever you feel convenient, you start speaking the notification and tell me जी sir. what observations you have, what query you have received from the various members, जी sir. and so that I can clarify your query and I can also subscribe my thoughts to the subject. जी सर। Thank you. सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट सर, जो आपका मोबाइल पे भी आई थिंक ये वीडियो चल रही है, उसकी वॉल्यूम आप जीरो कर देते प्लीज। वो एक्चुअली लेके आओ ना। नहीं, मोबाइल तो या जिस जीरो ही पे कर दिया, फोर्थ फोर्थ यही फोर्थ ला के रखो। जो भी फोर्थ डिवाइस है उसकी वॉल्यूम जीरो कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज मुझे 2 बार ही आ रही है, एको हो रही है। कोई हाँ इशू हाँ, नहीं इको कर रही है, आई एग्री। है, एको कर रही है आपकी वॉइस। तो सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड विद योर ब्लेसिंग्स, वी आर डायरेक्टली कमिंग टू 3rd May वाला नोटिफिकेशन। आई एम शेयरिंग द 3rd May वाला नोटिफिकेशन ऑन द स्क्रीन। Bindal ji, would you like to take this? Yes, yes. So इको कर रही है। I think एक बार सर सर, ठीक ये 3rd May वाला नोटिफिकेशन मैंने स्क्रीन पे खोल लिया है, एंड ओके, आपको भी स्क्रीन शेयर हो गई होगी इसमें। यस। बिंदल जी, तो मैं पारस जी टेक कर रहा हूँ, इसको स्टार्ट कर रहा हूँ जी सर। नोटिफिकेशन को, फिर एक बार इसको इन जी डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। सो ये फ्रेंड्स 3rd मई का नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, विच गोज एट in the exercise of powers conferred by the sub clause 6 of clause SA of subsection 1 of section 2 of the PMLA Act, the central government hereby notifies that the financial transactions, so the keyword here, first keyword is financial transactions, carried out by a relevant person is the second keyword, on behalf of his client in the course of his or her business, in the course of his or her profession, in relation to the following activities. In the course of profession को भी हम जी पारस जी हाईलाइट कर दिए। So the activities are buying and selling of any immovable property, managing of client money, securities or other assets, management of bank saving or securities account, organization of contribution for creation, operation or management of companies, and the last one is creation, operation or management of companies, limited liability partnerships or trusts, and buying and selling of business entities shall be an activity
for the purpose of said subsection, and there are certain explanations to it which goes at the first explanation says, for the purpose of this notification, relevant person includes an individual who has obtained a certificate of practice under section 6 of Chartered Accountants Act and practicing individually or through a firm in whatever manner it has been constituted. Second relevant person is an individual who has obtained a certificate of practice under Company Secretaries Act and practicing individually or through a firm in whatever manner it has been constituted. And the third one is an individual who has obtained a COP under Cost and Works Accountant Act and practicing individually or through a firm in whatever manner it has been constituted. And the second notification in this regard goes as explanation. For the purpose of this notification, firm shall have the same meaning assigned to it in sub clause 1 of clause 23 of section 2 of the Income Tax Act 1961. जी सर. So this is the third main notification. पारस जी आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं. हाईलाइट कर देता हूँ. सबसे पहले तो ये 3rd में की है. वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 नोटिफिकेशन है. सर विल थ्रो मोर लाइट ऑन दिस. इस नोटिफिकेशन में सर हमारा सबसे पहला कीवर्ड निकला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दूसरा निकला Yes. रिलेवेंट पर्सन और तीसरा इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन. सर हमें Correct. एज चार्टेड अकाउंटेंट्स हमें रेलेवेंट पर्सन समझ में आ गया कि सीए इन प्रैक्टिस वेदर एज इंडिविजुअल वेदर एज फर्म, CS in practice, CW in practice, whether as individual or as firm. कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो कैरी आउट करते हैं इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब अपना प्रोफेशन को एग्जीक्यूट करते वक्त वो कोई भी ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट कैरी आउट करते हैं विच इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन नेचर. दीज आर कवर्ड, क्या कहते हैं वो एंटिटीज. सर इससे पहले मैं आप इस पे आऊं. मेरे ख्याल से पारस जी इसमें ये भी है कि ये एक्टिविटीज अगर वो क्लाइंट के बिहाफ पे कैरी आउट करेगा तो ही. हाँ जी, खुद ऑन के बिहाफ बिहाफ पे ऑफ हिज करेगा. क्लाइंट. ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, ये भी एक कीवर्ड है. सर इसमें सबसे पहले मैं एक छोटा सा सवाल रहेगा, ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 क्लॉज ऐसे क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये कहाँ पे अमेंडमेंट आया और इसका क्या इम्प्लीकेशन है? देखिए ये पीएमएलए में एम्पावर करता है ईडी को. जी सर. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ईडी को एम्पावर करता है कि वो इसमें इस तरह के नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं. जी सर. जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, तो इसका मतलब है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विच इज एडमिनिस्ट्रेट दिस पर्टिकुलर एक्ट. बिल्कुल सर. ईडी एडमिनिस्टर 2 एक्ट. वन इज फेमा, अनदर वन इज दिस पीएमएलए. PMLA. सो ईडी को, ईडी इज एम्पावर्ड. उस सेक्शन में और कुछ नहीं है, ईडी उसमें एम्पावर है टू नोटिफाई. दैट्स ऑल. और सर ये जो नोटिफाई करते हैं और ये जो लोग नोटिफाई होते हैं ये लोग ये एक्ट बन गया, एक्ट बन गया जी, ये एक्ट बन गया. और इट्स ये ए पार्ट ऑफ एक्ट. ये जो लोग नोटिफाई होते हैं दे बिकम अ रिपोर्टिंग एंटिटी अल्टीमेटली. ये इसलिए किया है कि ये सेक्शन 12 जो है रिपोर्टिंग एंटिटी, जिसमें इनके कुछ ऑब्लिगेशंस हैं. दे हैव टू रिपोर्ट टू द एफआईयू. एफआईयू मींस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का जो ऑफिस है सम्राट होटल में है, एंड विद इन द परव्यू ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. जी सर. तो वहां पर क्या है, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्स, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन कंट्री. जी सर. ये वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके जो भी इनको ये लगता है कि कोई मान लो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है. फॉर एग्जांपल सस्पिशियस क्या है, मैं आपको अपना ही केस बता देता हूं. कुछ दिन पहले मेरे अकाउंट में यूरो आए 70,000. मेरे को क्रेडिट नहीं दिया मेरे बैंक ने, मुझे फोन करके बुलाया. मुझे तो पता था कि भी मेरे अकाउंट में फीस आने वाली है, मैंने बाहर की कंपनी को पीएमएलए की सर्विसेज रेंडर की है. मैं गया, मैंने उनको बिल दिखाया, तो मैंने कहा जी ये आप आज की क्या रेट है, ये रेट है कन्वर्जन की, आप इसे कन्वर्ट कर दीजिए. और ये मेरा बिल रेज किया है मैंने क्लाइंट से, मेरे फीस आई है. तो बोले ओके ठीक है. तो मैं भी इसलिए गया कि मुझे ये फंक्शनिंग मालूम है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो वो कुछ और रिपोर्ट कर देंगे, तो मुझे अननेसेसरीली फिर भागना होगा, परेशानी होगी. तो मैंने खुद जाकर के बैंक को इंटीमेट किया और जाकर के उनको बताया कि दिस इज नॉट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, दिस इज रेगुलर फीस.
तो देखिए इस तरह की एक अकाउंट है, मान लो उसमें एक दुकान से रेंट आ रहा है, एक 2 मकान से रेंट आ रहा है, एक उसकी सैलरी आ रही है, एक उसकी कुछ प्रोफेशनल रिसीट आ रही है, जो भी आ रहा है, उससे हटके अगर कोई पैसा आता है which appears to be abnormal, which appears to be something different from normal, this is suspicious. जी सर। तो सर हम आपके बात से सबसे पहले तो ये समझे कि ये नोटिफिकेशन जो आया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज 6 के ऐसे में आया है, जहां ईडी के पास पावर है कुछ एंटिटीज को क्या कहते हैं नोटिफाई करना, और वो एंटिटीज अल्टीमेटली एक रिपोर्टिंग एंटिटी बनती है। तो सबसे पहले तो वी एज चार्टेड अकाउंटेंट्स हैव बिकम रिपोर्टिंग एंटिटीज। we the relevant persons, I'm sorry मैंने सिर्फ CA यूज किया। we professionals have become reporting entity, and any transaction of any financial transaction जो इन 6-5 क्लॉजों में आती है, that we carry out on behalf of our client in the course of our business। हम अपने क्लाइंट के लिए कोई ट्रांजैक्शन इन द कोर्स ऑफ आवर बिजनेस अगर कैरी आउट कर रहे हैं, तो हमको FIU आप को बोलिए रिपोर्ट करना है। आप बोलिए इन दी कोर्स ऑफ आवर प्रोफेशन। जी सर। अगर हम उसे एक प्रोफेशनल एक्टिविटी मान करके एक असाइनमेंट लेकर के उस काम को कर रहे हैं, जी जी जी। तब हम रिपोर्टिंग एंटिटी हैं। ये पॉइंट है। और ये 5 बिजनेस एक्टिविटी। हाँ जी सर, सर आप प्लीज। बिजनेस हमारे क्लाइंट का है, हमारा तो प्रोफेशन है। हम उनके बिहाफ पे कर रहे हैं, और ये हाँ, 5 एक्टिविटी है। सबसे पहली, अगर हम इन द कोर्स ऑफ आवर प्रोफेशन एंड ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लाइंट कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं, सबसे पहली ट्रांजैक्शन। दूसरी, उनके मनी को मैनेज करते हैं, मैनेजिंग क्लाइंट्स मनी, सिक्योरिटी और एसेट। मतलब अगर हाँ। हम में से कोई प्रोफेशनल ऐसा है जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा है, तो वो कवर हो जाता है आज की डेट में। यस, वो कवर होगा। आगे चलिए। फिर मैनेजमेंट ऑफ बैंक सेविंग्स और सिक्योरिटीज अकाउंट, ये आई डोंट थिंक हम में हाँ, से कोई प्रोफेशनल करता होगा, लेकिन अगर कोई करता है तो वो कवर हो जाता है। चौथा हम नहीं सबके नहीं लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर क्रिएशन, ऑपरेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एनी हम्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम्म जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं कंट्रीब्यूशन यानी सम ऑफ मनी फॉर क्रिएशन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। यानी हम अगर क्लाइंट की कोई आप सर इस पे बताना चाहेंगे कुछ प्लीज। मैं इसमें ये बताना चाहूंगा, देखिए ये क्यों आया, आप एक चीज समझिए। हम लोग क्या करते हैं कई बारी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, हम जरूरी नहीं है कि हम प्रोफेशनल करते हैं, लेकिन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी जी सर। कि हम प्रोफेशनल लोग उसमें इन्वॉल्व थे। ये जी 2015 से FATF ऑब्जर्व कर रही थी। FATF इज ए ग्लोबल वॉचडॉग। जी उनका काम ये है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उनका जी काम ये है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जी ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो ये देखते हैं कि जो टेररिस्ट मनी है, जी या जो मनी लॉन्ड्रिंग है, या जो ड्रग मनी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये सारी चीज ग्रोथ के अगेंस्ट है। जी सर। किसी भी कंट्री की चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे मेंटल ग्रोथ हो, सारी इकोनॉमिक ग्रोथ इन सब ग्रोथ से कनेक्टेड है। जी सर। तो ये एक उसमें, अगर इसको नहीं रोकेंगे, इस क्राइम को, ये क्राइम मनी है, क्राइम मनी अगर कंट्री में आता रहेगा, वो कंट्री डेवलप, वो कंट्री राइज नहीं कर सकता। जी सर। इसको रोकने के लिए ही ये FATF एक ग्लोबल वॉचडॉग प्रोवाइड्स ए रॉ मटेरियल टू एनेक्ट द पीस ऑफ लेजिस्लेशन टू द वेरियस कंट्री। जी उन्होंने ही हमको ये समझाया है कि आप ये करिए। अब उन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया, मैं इस चीज पे आता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज, देखिए मैं नाम उसका लूंगा, जो चीज पब्लिक डोमेन में है, किसी को हर्ट करना अपना उद्देश्य नहीं है, सब्जेक्ट को समझाना उद्देश्य है। आप कंप्यूटर पे डालेंगे एक्स CBDT चेयरमैन लैंड स्कैम, मिस्टर सुशील चंद्रा एक IRS ऑफिसर थे, और उनका आप डालेंगे, उनके में क्लियर कट आया हुआ है 600 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन की लैंड। उनके साले साहब डॉक्टर अरविंद गोयल जो मुरादाबाद में हैं, आज भी ये चीज कंप्यूटर पे है, आप डाल के देखिएगा। 600 करोड़ वैल्यूएशन की लैंड जब उनके पास हो गई, तब तक बैंक से वो सारे ट्रांजेक्शन कर रहे थे। जो इसमें बीच में आदमी इन्वॉल्व था, वो आदमी भी चंदौसी का है, वो
अपने आप को सीए बताता है, जबकि वो सीए नहीं है। मुझे पता है वो सीए नहीं है, लेकिन वो सीए इंस्टीट्यूट को, सीए को बदनाम कर रहा था, सब जगह सीए बताता था अपने आप को। वो सारा शेल कंपनीज कैलकाटा की ला के उसने डॉक्टर अरविंद गोयल के फंड्स जनरेट किए, उनके ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट किए, उनके फंड्स मैनेज, ये है वो मैनेजमेंट। जी सर। लेकिन तब तक उन्हें ये नहीं पता लगा हु इज बेनिफिशियरी, बैंकों को यही नहीं पता लगा हमारा क्लाइंट कौन है। इसीलिए तो ये क्लॉज आई है कि बैंकों की ये लीगल ड्यूटी है टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी, टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट। जी कौन सर। तो उनका क्लाइंट है, ये क्लाइंट नहीं है जो ड्राइवर आ रहा है, ये क्लाइंट नहीं है जो बीच में जी सर। प्रोफेशनल आ रहा है। क्लाइंट कौन है, क्लाइंट वो है, बेनिफिशियरी कौन है, वो डॉक्टर को ही बेनिफिशियरी समझ रहे थे। जी सर, मैं समझ तो गया। ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी, नहीं ये पैसा किसका है। अल्टीमेटली ये उनको लगा नहीं, ये तो आईआरएस ऑफिसर इनके जीजा है सुशील चंद्रा, ये पैसा उनका है, क्योंकि ये सारा काम मैनेज जो कर रहा था वो एक अनिल अग्रवाल है चंदौसी का, हु इज नॉट सीए, उसका नाम भी अनिल अग्रवाल है, हु इज नॉट सीए, बट ही क्लेम्स टू बी एज इफ ही इज सीए, ही इज नॉट सीए, आई नो वेरी वेल। अब ये इस तरह के लोग प्रोफेशन को गंदा कर रहे हैं। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, जब ये पता लगा कि भाई रियल बेनिफिशियरी कौन है इसका, तभी ये आया कि ये बैंक की ड्यूटी है कि वो ये पता करे कि एक डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर है, उसको इतना पैसा कहां से आ गया, उसको इतना कंपनियां कहां से पैसा दे रही हैं। जो बैंक यहाँ फेल हुए ये जानने में कि उन्होंने रियल बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंच पाए, वो तभी ये चीज ऐड की गई। यू गेट समझ माई गया। पॉइंट। समझ गया सर। आई एम अब आई जैसे एम पहले टेलिंग यू। बैंकों की ड्यूटी थी, अब वैसे ही वी एज प्रोफेशनलों की भी ड्यूटी लगा दी कि भाई अगर आप। हमारे पास एक, देखिए हमारी क्या ड्यूटी है, हमारे पास एक क्लाइंट आ रहा है, वो कह रहा है जी हम उसको क्लाइंट को ऑफर दे रहे हैं, हमें पता है इसके पास बहुत पैसा है। पहले तो हमें कैलकाटा की कंपनी लाई, उसने अनिल अग्रवाल ने अरेंज करी, फिर उसने जाके कैलकाटा की कंपनी से उसको पैसा दे के वो सारा उनकी कंपनी में लाया। उस कंपनी से डॉक्टर का कंट्रोल था, सुशील चंद्रा कहीं बीच में ही नहीं समझ गया। है, लेकिन वो रियल बेनिफिशियरी हैं ऐसा लगा एफएटीएफ को, ऐसा लग रहा है आज सीबीआई को, आज उनकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है, आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनकी इंक्वायरी कर रही है। जी सर। तो सर अब इसका एक इम्प्लीकेशन ये भी हो गया कि जैसे हम कोई सीए एज प्रोफेशनल या कोई प्रोफेशनल की आईपीओ फंडिंग में हेल्प करते हैं क्लाइंटों को, इन्वेस्टर्स करेक्ट, ढूंढने में, या करेक्ट, यू हैव टू लोन रिपोर्ट। बैंक लोन ढूंढने में मदद करते हैं, तो उनको ये सारी अपनी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। तो बैंक इनको। लोन में जो बैंक लोन में करते हैं, और भी आप देखिए, बैंक लोन में छोटे मोटे सीए नहीं है जो ये बैंक के डायरेक्टर बनते हैं, समझे। ये वो लोग हैं जो प्रोफेशन में व्हाइट कॉलर टाई वाई लगा के अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, बैंक के डायरेक्टर बने। ये जी किस सर। लिए, इसलिए डायरेक्टर नहीं बनने, इन्हें बैंक की फंक्शनिंग सुधारनी है, अपनी स्थिति सुधारनी है, इन्होंने अपनी सुधारी है अभी तक। तो इसमें अब हमें सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा एज प्रोफेशनल्स, अगर हम कोई भी क्रिएशन हाँ, ऑपरेशन। ठीक सर। जो लोन कराया है दिखाना पड़ेगा कि आपने किसका लोन कराया है, ये डायरेक्टर। ईडी को हमें एफआईयू के जरिए बताना पड़ेगा सालाना। वो कंप्लाइंसेस भी हम आपसे एक बारी अब एंड में ये देखिए मनी मैनेजमेंट का क्या है इसके पीछे, आपको बताता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग इज ए शेड्यूल्ड ऑफेंस। जी साहब। इनसाइडर ट्रेडिंग इज ए शेड्यूल्ड ऑफेंस, इससे क्रिमिनल ऑफेंस। अमेरिका में इस पे सजा भी हुई है। जी जी जी। हमारे यहाँ तो बहुत बाद में बना है क्रिमिनल ऑफेंस, अमेरिका के बाद में बना है। अब ये इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, फोन करके एक ब्रोकर बता रहा है अपने क्लाइंट को ये वाला शेयर ले ले, जल्दी ले ले, ले लिया उसने। अब वो शेयर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो कह रहा है भैया जब तू बेचे अपना माल मुझे बता दियो कि ठीक है, और उसे पता है कहां तक उसे ले जाना है। दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग। जी आर सर। यू इनसाइडर ऑफ द कंपनी, ये देखना पड़ता है इसमें। अब सेबी ने इसमें कैसे पकड़ा, सेबी ने ये देखा, सेबी आपसे क्या करेगा, नोटिस देगा, फोन की डिटेल मंगाएगा, किस किस से बात की आपने उस दिन, जिस दिन आपने शेयर खरीदे, आपकी सारी कॉल ट्रेस करेंगे। इस तरह से ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने देखा कि ये जो फंड्स मैनेज कर रहे हैं, इसमें है ना सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सिक्योरिटी मैनेज नहीं कर रहे, ये इनको इनसाइडर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करा रहे हैं। जी सर। जी ये सर। सब इसलिए आया है, दिस इज ऑल मनी लॉन्ड्रिंग। जी सर। फिर इसके बाद लास्ट क्लॉज है, क्रिएशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ कंपनी एलएलपी ट्रस्ट एंड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो यस, अब फाइनेंशियल देखिए ट्रांजैक्शन इन मैं कनेक्शन बताता विद। हूँ पारस जी। जी साहब। पारस जी, इसमें जैसे ट्रस्ट है, ट्रस्ट में कंपनी से डोनेशन अरेंज करता है, कौन करता है। बहुत लोगों के फोन आएंगे, अरे भैया तुम्हारी कंपनी कोई कंपनी है तुम्हारे पास, भैया मुझे लोन, मुझे डोनेशन चाहिए।
हैं, प्रोफेशनल करते हैं ये काम। जी 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 अब जो ये काम करते हैं इसका मतलब वो ट्रस्ट के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जी कैश सर दे रहे हैं, चेक अरेंज करके दे रहे हैं कैश के अगेंस्ट। जी सर तो गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे? जी सर समझ तो गया ये मैं। हमारे उन लोगों के लिए जो गलत कर रहे हैं, आप और हम थोड़ी गलत कर रहे हैं। जी फिर कि तो ये जेन्युइन उन लोगों के लिए जेन्युइन किसी बड़ी टेस्ट के लिए अगर आप कर रहे हो, मतलब जो जेन्युइन काम कर रही है नहीं नहीं, तो एक बड़ा बात है। छोटे की बात नहीं है। अगर आप डोनेशन इसमें 10 लाख का भी दिला रहे हैं वो भी गलत है। ठीक सर। डोनेशन क्यों इसमें बंद करेंगे? ये जो कॉर्पोरेट डोनेशन है ये क्या है? कोई कोई आज कोई ये डोनेशन दे रहा है? आप ये देखिए, ये इतने स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, ये सब डोनेशन से खुले। कोई डोनेशन दे रहा है किसी को आज? जी सर। है? तो as professionals it will be the responsibility टू रिपोर्ट कि अगर हमने कोई ट्रस्ट को डोनेशन दिलवा दी या एलएलपी को कंट्रीब्यूशन दिलवा दिया या कंपनी एनी टाइप ऑफ any type of financial transaction wherein we are involved, इसमें सर बाइंग एंड where सेलिंग cash। ऑफ बिजनेस एंटिटी भी आ गई, यानी कंपनी सर खरीदना भाई, बेचना। सर खरीदना बेचना की बता देता हूँ ये क्यों आया है, वो भी बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी पीएमएलए में इन्वॉल्व थी, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। आई हैव सीन मेनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। वो मैं आपको केस का नाम नहीं बता रहा हूँ, मैटर इज सब जुडिस बिफोर स्पेशल कोर्ट, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अब उसमें वो प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। जी सर। अब उनका कोई आदमी उसे कहता है कि साहब ये प्रॉपर्टी तो मैं बिकवा देता हूँ, अभी नोटिस तो आया नहीं है आपको, अभी टेस्ट तो हुई नहीं है। उसने फटाफट एक कामाफ्लेज ट्रांजेक्शन कराया और वो प्रॉपर्टी किसी को बिकवा दी। जी सर। और इसमें एफएटीएफ कहती है मोस्टली कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स आर इन्वॉल्व, जी क्योंकि उनके उनके फाइनेंस के फील्ड में ट्रांजेक्शन है। जी ठीक है ना? उनके फाइनेंस के फील्ड में ट्रांजेक्शन है, जी वो सर। करा सकते हैं। वो फटाफट उसने किया, उसको करवा दिया, उसको कैश आ गया। अब ये क्या हो गया कि वो प्रॉपर्टी वो समझ रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो इन्वॉल्व थी मनी लॉन्ड्रिंग में वो तो दूसरे पे चली गई, अब प्रॉपर्टी वहां अटैच हो गई। उसके बाद में अमेंडमेंट आई सेक्शन 2 सब सेक्शन यू में कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन चेंज हुई कि कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द प्रॉपर्टी, मीनिंग देयर बाई कि जो कैश मिल गया सेलर को, दैट हैज बिकम द प्रॉपर्टी। जी सर मैं तो समझ एक्ट इसी तरह डेवलप होता है ना, धीरे धीरे नया एक्ट डेवलप हो रहा है। जी सर मैं समझ गया आपकी बात। बाकी ये है कि हमें इसमें देखिए बेसिकली ये है, हमें ये सब ट्रांजैक्शन से तो बचना ही है, रिपोर्ट करना है, लेकिन हमें ये ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हैं। हम अगर ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर एसोसिएटेड विद एनी एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग। बट सर कुछ तो जैसे जेन्युइन भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आज आईपीओ फंडिंग अपने आप में एक प्रोफेशन है। ठीक है। आज क्या कहते हैं, आप मान के चलिए आईटीओ फंडिंग को अगर आप हटा भी दो, आप आज बहुत सारे प्रोफेशनल हैं जो बैंकों से लोन का काम करते हैं, लोन। जो एक जेन्युइन ठीक काम है, है। मतलब मैं गलत नहीं मानता उसको कि भी मैं अगर गया। जेन्युइन कर रहे हैं तो यू आर रेंडरिंग योर प्रोफेशनल सर्विसेज वेरी ऑनेस्टली एंड कॉम्पिटेंटली, नो प्रॉब्लम। बस आप रिपोर्ट करते रहिए, अगर गलत कर रहे हैं हाँ, तो थम जाइए, गलत सही कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन रिपोर्ट साथ में कीजिएगा। देखिए आपको आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है behind the curtain. You have to understand the nature of the transaction behind the curtain. Whether it is conversion from cash to bank, whether this money which is inducted into the bank, it is a conversion, it is out of the conversion from cash. ये सब चीज वहां जो आप लोन करा रहे हो तो गलत है ही नहीं। वो तो आप बैंक से एक नीडी को पैसा दिला रहे हैं, वो तो जैसे वो तो आप सही काम कर रहे हैं। जी सर। प्रॉब्लम ही वहां है जहां एक आदमी आ जाता है कैश लेकर, कहता है भैया ऐसा है ये 100 करोड़ आ गया है, जरा देख लेना। अजी चिंता ना करो, अभी अभी लो। उसने 4 फोन मिलाए, कंपनी दिलवाई और फटाफट 10 दिन में उठा के पैसा उसने बैंक में डलवा दिया। तो भैया ये काम हमारा थोड़ी है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में हम पूरी तरह भागीदार हैं, जी इसलिए सर। ये लॉ आया। जी सर समझ गया सर। तो 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 सर मैं ये एक चीज, बताना चाह रहा हूँ पारस जी और बिंदल जी, हमें मनी लॉन्ड्रिंग से बचना है। जैसा कि मैं अपनी पहली उसमें भी बोल चुका हूँ, ये चीजें सब इसी के लिए आई हैं। कोई सा नोटिफिकेशन देख लीजिए, दूसरा में एक्टिविटी है, दूसरे में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, उसमें एक्टिविटी है, जी सर। जी उसमें एक्टिविटी पे जोर है। आप मैं पढ़िए दूसरे मैं नोटिफिकेशन। दूसरा भी मैंने खोल लिया सर। सर आप हाँ स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल देख पा रहा हूँ जी।
तो सर जैसे पहला 3 मई का नोटिफिकेशन था वो CA CS CWA प्रोफेशनल्स पे लगता था, फाइनेंशियल हाँ एक्टिविटी दैट दे कैरी आउट इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशन ऑन उस बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। पारस अब जी, एक चीज इंटरप्ट करूंगा, जी सर से पूछनी थी। वो जो हमें रिपोर्ट करना है, कोई उसका रिपोर्टिंग फॉर्म या कोई फॉर्मेट आया है सर? और वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा या फर्म लेवल पे होगा? नहीं नहीं, इसके लिए ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं। आप रूल्स में जाएंगे, आप बाद में देखेंगे जो एक्ट में रूल्स जहां है, नेट पे भी डालेंगे तो रूल्स में आ जाएगा, एक स्पेसिफिक वो बना हुआ है। यू हैव टू रिपोर्ट टू द FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। तो सबसे पहले सर हमें उसमें कुछ FIU में रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ेगी, जैसे NBFC लोग या वो सब कराते हैं CKYC या कहीं पे नहीं, रजिस्ट्रेशन वो तो अपनी। जब जब वो तो जब आप भेजेंगे तो ऑलरेडी आपको, आप रजिस्टर्ड हो गए। जब आप इंटीमेट, अगर आप ये काम एक्टिविटी में नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कराने की क्या जरूरत है? आप ये काम कर ही नहीं रहे, फिर आपको, आपका तो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है अपने इंस्टीट्यूट के साथ। जी सर। मेंबरशिप नंबर इज और जस्ट लाइक पैन कार्ड। जी सर, समझ गया समझ गया। सर अब जैसे पैन कार्ड इनकम टैक्स में, मेंबरशिप नंबर सी इंस्टीट्यूट में। जी सर। सर 3 मई का के बाद अब जो 9 मई को नोटिफिकेशन आया है, एक बार हम 9 मई का सर नोटिफिकेशन बता रहे हैं। वो कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कॉन्फर्ड अंडर सब क्लॉज 6 ऑफ वही क्लॉज। है, सेम है, सेम है। हाँ, उसके बाद यहाँ कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेयरबाय नोटिफाइज फॉलोइंग एक्टिविटीज when carried out in the course of or on behalf of any other person as the case may be as an activity for the purpose of the subclause, namely अभी एक्टिविटी क्या है? Acting as a formation agent of company LLP, acting as a director, secretary of a company, partner of a firm or similar position in relation to any other companies and LLPs. तीसरा कहता है प्रोवाइडिंग रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस एड्रेस और अकोमोडेशन, correspondence or administrative address for a company or an LLP, or acting as a trustee of an express trust or forming the equivalent function for another type of trust, and पांचवा कहता है एक्टिविटी एक्टिंग एज और अरेंजिंग अनदर पर्सन टू एक्टिंग एज नॉमिनी शेयर होल्डर फॉर अनदर पर्सन। सर रेलेवेंट पर्सन का इसने एक तो स्कोप हटा दिया जो मैं समझ पा रहा हूँ, बाकी आपका हम आपसे समझेंगे और एक बार क्लॉज बाय क्लॉज आएंगे। पहले फाइनेंशियल एक्टिविटी कहता था, फिर इसने फॉलोइंग एक्टिविटी कह दिया, इन द कोर्स ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ, वो वाला पॉइंट सर सेम है। It is Parasji very clear. If you are doing the following activities only, it is relating to activities जी and सर। activity for and on behalf of your client or for and on behalf of any other person. किसी के भी लिए कर रहे हैं ये following activity, then also you are a reporting entity. That's all, nothing else. अब सर इसमें जैसे पहले हमारा रेलेवेंट पर्सन में CA CS CWA आते थे, ये सभी के लिए है, ये ये हमारे लिए सबके भी लिए आ आ गया गया, ना। ये हमें तो वकीलों के अपने लिए भी लिए आ गया, पढ़ना है। और ये हमें इंडिविजुअल तो के अपने, लिए कोई भी ये 5 काम कर रहा है उन सबके लिए कवर हो गया क्या ये? यस, ये एक्टिविटी जो भी कर रहा है, कोई कंपनी बना के कर रहा है, वो भी फंसेगा। जी सर। भाई इसमें ये कहाँ लिखा है कि कंपनी नहीं कर सकती? ये एक्टिविटी तो कोई भी इंडिविजुअल कर रहा है, फर्म कर रही है, LLP कर रही है। आप ये माने जो भी संस्था या जो भी इंडिविजुअल इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, चाहे वो एडवोकेट हो, कोई भी हो, समझ ही गया हैज सर। टू रिपोर्ट। जी सर, यहाँ सबसे रिलीवेंट पर्सन नहीं है, यहाँ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ एक्टिविटी है, दैट्स ऑल। कोई भी। अब सर सबसे पहला आता है एक्टिंग एज अ फॉर्मेशन एजेंट ऑफ अ कंपनी और LLP। हाँ, किसी फॉर्मेशन ने भी एजेंट। फॉर्मेशन आप एजेंट, देखिए, एजेंट, हाँ, दूसरा मतलब आप कोई भी आदमी। फॉर्मेशन एजेंट। जी सर। हाँ, कोई भी सही आदमी कहा आपने। LLP। अब सर मतलब मान लीजिए इसमें सर एक एक्सक्लूजन भी है, हम उसको हटा देंगे अभी 5 मिनट बाद। मतलब मोटा मोटी कोई भी कंपनी फॉर्मेशन एजेंट का काम करता है, मतलब मैं एक .com खोल लेता हूँ ऑनलाइन, quickfilings.com या ऑनलाइन indiafilings.com, और मैं indiafilings.com में कहता हूँ कि मेरे को 5,000 रुपये दो, मैं तुम्हारी कंपनी खड़ी करके दे दूंगा। तो क्या मैं? अगर आप सिर्फ डिक्लेरेशन डाल रहे हैं तब ये लागू नहीं होगा। आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, नहीं सर, आप इंडिया ये इंडिया मैं देखिए। आपको स्पेसिफिकली एग्जांपल के साथ कह रहा हूँ, ये e-commerce.com कंपनियां आजकल आ गई हैं, देखो डिक्लेरेशन तो सर CA डालता है, वो नीचे एक्सक्लूजन में आ जाएगा, मैं मानता हूँ। लेकिन इंडिया फाइलिंग एक फॉर्मेशन एजेंट का काम करता है, आप जाइए वहां पे अपना खाता खोलिए,
आप उनको उनकी फीस या 5,000 10,000 जो भी उनकी फीस है उनको दीजिए, वो आपको 2 4 5 10 15 दिन में कंपनी खड़ी करके आपको वापस दे देंगे। आपकी ड्यूटी बनती है, आपको रिपोर्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए सुनिए, दो चीज है। हमें पहली चीज तो क्लाइंट को आइडेंटिटी ऑफ आवर क्लाइंट, सेकेंडली हु इज बेनिफिशियरी, हमको ये रिपोर्ट करना है। अब हमको ये बताना है कि इस क्लाइंट ने हमसे ये कंपनी फॉर्म कराई, जी ठीक। हमने सिर्फ डिक्लेरेशन फाइल नहीं किया है, सिर्फ फॉर्म फाइल नहीं किया है, हमने उसको एक कंपनी की एंटिटी उस बना के दी है, कंपनी दी है, एलएलपी दी है, जो भी कुछ दिया है उसको बना के दिया है। हमें पता होना चाहिए इसका पर्पस क्या है। आप जी समझ रहे हैं ना, कोई कोई आदमी कंपनी बनाता है, जैसे पहले कंपनी बनती थी, पहले कंपनी बनती थी तो इतनी जरूरत नहीं होती थी। ये तो जैसे जैसे एफएटीएफ ने रिकमेंड किया, एफएटीएफ ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा, क्योंकि हम भी एफएटीएफ के मेंबर हैं, जी सर। जितने डेवलप्ड कंट्री हैं सभी 180 कंट्री एफएटीएफ के मेंबर हैं आज। जी सर। और अगर कोई आदमी ये भी बता दूं एफएटीएफ की इतनी इंपॉर्टेंस है, जैसे देखिए पाकिस्तान एफएटीएफ को का मेंबर नहीं है, या और छोटे कंट्री नहीं है, इन लोगों की कोई, इन कंट्री की कोई वैल्यू भी नहीं है। इन कंट्री को कोई प्रोजेक्ट इनका फाइनेंस नहीं करेगा, कोई इन्हें लोन नहीं देगा। इन्हें आईएमएफ ने लोन देने से मना कर दिया, बिकॉज दे आर नॉट मेंबर ऑफ एफएटीएफ, दे आर नॉट मेंबर, दे डोंट फॉलो दीज गाइडलाइंस ऑफ द एफएटीएफ। इतनी इंपॉर्टेंस है एफएटीएफ की, मैं ये बताने जा रहा हूं आपको। तो सर जैसे अपना ओके। फर्स्ट क्लॉज तो एक्टिंग एज फॉर्मेशन एजेंट हो गया। नेक्स्ट हम्म क्लॉज है फॉलोइंग एक्टिविटी कैरिड आउट, हम्म जैसे हम्म एक्टिंग एज डायरेक्टर, सेक्रेटरी, हम्म पार्टनर और एनी अदर हम्म सिमिलर पोजीशन इन अ कंपनी एलएलपी। यानी कंपनी में डायरेक्टर और सेक्रेटरी बनना, या एलएलपी में या फर्म में पार्टनर बनना, हम्म उसको भी कवर कर दिया। तो क्या हर करेक्ट आदमी को रिपोर्ट करना पड़ेगा एफआईयू को कि भाई साहब मैं डायरेक्टर हूँ? करेक्ट करना पड़ेगा। जी। समझ रहा हूँ सर। फिर कहते हैं ये क्यों प्रोवाइड। है, जी सर। आप ये समझ रहे हैं ना, ये सब चीजें क्यों आई हैं। नहीं सर, आप आपसे समझना चाहेंगे क्या? और आप ये देखिए, ये पीएमएलए में ही आई हैं। जी सर। ये ईडी ने ही इसको किया है नोटिफाई, जिसमें ईडी को पूरी अथॉरिटी है सेक्शन में जी सर। नोटिफाई करने की, कि ये भी एक्टिविटी रिपोर्ट करनी है रिपोर्टिंग एंटिटी को, और पर्टिकुलरली किसको करनी है उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया। तो इसका मतलब जो भी आदमी डायरेक्टर, सेक्रेटरी या पार्टनर बन रहा है किसी कंपनी या एलएलपी में, उसको हाँ रिपोर्ट करना होगा ईडी को। बस इसमें एक करेक्ट ये इन्होंने एक्सक्लूजन दे दिया, एक्टिविटी कैरिड आउट बाय एन एम्प्लॉय ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन करेक्ट रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। मतलब कोई जी। एम्प्लॉय डायरेक्टर बनता है, या मान लीजिए कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनता है, अगर मैं शब्द लिखूं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सर आप है, मेरे ख्याल कुछ डिस्कनेक्ट हो गया सर का। आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ है। डिस्कनेक्ट हो गया सर। नहीं है। कोई नहीं, एडिटिंग करके ना ज्वाइन कर लेंगे बीच के मैंने जो। मैंने पॉज ही कर दिया। हाँ, हाँ। वैसे पारस जी, एक चीज है मैंने जो देखा, मतलब बहुत ज्यादा तो मेरे को नॉलेज नहीं है इस बारे में। 3 वाले में लिखा है इन द कोर्स। तो सर इसमें ये कहता है कि एक्टिविटी कैरिड आउट बाय एन एम्प्लॉय ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर इन द हम्म कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। यानी कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो सैलरी ड्रॉ कर रहा है, हम्म वो एक्सक्लूड हो गया। हम्म इसके अलावा जो एक्सक्लूड कहां आदमी से हो गया, हाँ जी। एक्सक्लूड कहां हुआ है। सर ये कह रहे हैं ना, फॉर द रिमूवल इट इज आप कौन सा हैविंग। पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये सर एक्सप्लेनेशन को साथ ही साथ पढ़ रहा हूँ ना मैं। हाँ कोई बात नहीं, कौन सा पॉइंट है 9th मई बी नोटिफिकेशन बी में कौन सा बी पॉइंट है। बी सर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन का का बी। बी। हाँ बी पढ़िए। Any activity that is carried out by an employee on behalf of his employer in the course of or in relation to his employment. यस, इसमें तो कोई ड्यूटी नहीं है ना, इसमें तो वो अपनी सर्विस की ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, इसमें रिपोर्ट करने की क्या जरूरत है उसे। नहीं, लेकिन इसमें क्या है, एक्टिंग एज अ डायरेक्टर या सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी। वो पहले आ जाओ ना आप, वो आप एक्सप्लेनेशन से पहले पढ़िए फिर।
जी साहब। सर जैसे मेरा ऐसे मे, मेरी क्वेरी छोटी सी है। उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी आदमी डायरेक्टर है या सेक्रेटरी है हम्म, एक कंपनी में या फर्म का पार्टनर है, उसको हम्म, एफआईयू को बताना पड़ेगा, पता ये रिपोर्टिंग क्यों आया एंटिटी है बन मैं, गया। आप इसके पीछे क्या इंसिडेंस हुआ, कहां से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, किसी भी डिपार्टमेंट में, मे बी पुलिस डिपार्टमेंट ये भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मे बी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, किसी ने भी लिखा, किसी के भी ऑफिस से गया, ये क्या हुआ मैं बताता हूं। एक कंपनी मिल्क बायोटेक लिमिटेड, इन्होंने एक तिवारी जी उसमें बन गए एमडी और एक दुबे जी बन गए उसमें डायरेक्टर। और ये क्या कर रहे थे, ये एडवर्टीजमेंट वगैरह देके ये करके लोगों से वो एजेंसी बांट रहे थे कि हमारी ये कंपनी है, ये काम करेगी, ये काम कम करेगी। एक गुजरात के आदमी ने जो 6 लाख रुपए सिक्योरिटी थी वो जमा कर दी, एक विशाखापट्टनम में कर दी। ये सब चीजें मैं जो बोल रहा हूं ना, नाम लेकर तब बोल रहा हूं जो मेरे पास रिकॉर्ड है, ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं। जी सर। और मैं सब्जेक्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और आजकल तिवारी जी जेल में बंद है, क्योंकि वो कई बार ये कहने लगे जी मिल्क बायोटेक तो यहाँ थी नहीं, मैं तो उसमें था ही नहीं। दुबे जी कहने लगे जी मैं तो ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कर रहा था। अरे भाई तुम एम्प्लॉयमेंट तो कर रहे थे, लेकिन तुम एज ए डायरेक्टर कर रहे थे। जी सर। ये सब एक्टिविटीज को कवर किया गया है इसमें। इसमें ना वो तिवारी जी सीए थे, ना वो दुबे जी सीए थे, ना हम प्रोफेशनल थे, लेकिन एक बिजनेस कोर्स में कर रहे थे, वो इसमें दिया है सारा। इस तो अब तरह की क्या, एक्टिविटीज जो लोग। अब एक डायरेक्टर, मतलब कोई भी आदमी, मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। एज अ हम्म, डायरेक्टर मैं सर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक बहुत डिसीजन हम्म, लूंगा कंपनी हम्म, में, क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे नहीं करना। डे टू डे, हम्म, अब छोटी कंपनी की बात छोड़ो सर, बड़ी कंपनी में तो डेली डिसीजन लिया जाता है, और डेली क्या, हर मिनट में एक डिसीजन लिया जाता है एक डायरेक्टर का। तो उसे रिपोर्ट हम्म। क्या करना है? ये रिपोर्ट करना है कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, या उसको ये रिपोर्ट करना है कि मैं इसके अंदर क्या काम कर रहा हूँ? नहीं नहीं, आपको ये तो करना ही है कि आप इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, इस डेट से बने हैं और इस काम के लिए बने, इसको ये आपका स्कोप ऑफ वर्क है। जी सर। क्योंकि वो इसलिए है कि कल को अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप उससे भाग ना सकें। कल को सब लोग पीएमएलए में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे आज तिवारी जी जेल में क्यों बंद हुए है, वो इसलिए बंद हुए कि सब लोगों ने जो अपनी सिक्योरिटी की बात बताई जाके ईओडब्ल्यू को, जाके पुलिस को बताई, जाके उन्होंने कोर्ट में बताई, उन्होंने कहा यार ये आदमी क्या कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं। और ये लोग इस तरह से डायरेक्टर बना बना के औरों को, और ये कर क्या रहे हैं। अब दुबे जी कहने लगे जी मैं तो साहब डायरेक्टर था, लेकिन मैं तो अपने एम्प्लॉयर की इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा था। ऐसे नहीं होता। आप एज ए डायरेक्टर वो डिसीजन ले रहे थे, आप भी कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ले रहे थे। अब वो आपको किस तरह बेनिफिट दे रहा था, वो आपने एक्सप्लेन करना है जब आप अंदर जाओगे, जब आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जब आपका कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन होगा। ये एक्टिविटीज इसलिए लिखी गई है, क्या आप बिजनेस में उस आदमी की हेल्प कर रहे हो, वो आदमी फ्रॉड कर रहा है, और उसकी कौन कौन हेल्प कर रहा है। अब आप एक चीज देखिए, कंपनी में ये डायरेक्टर का ये जो लिखा गया है, कौन कौन कितनी शेल कंपनी में आपको डायरेक्टर कौन मिलेंगे। कोई ड्राइवर डायरेक्टर बना रखा है, कोई 10,000 उसको, सॉरी, उसकी 2 लाख रुपए सेल दिए साल की, उसे डायरेक्टर बना दिया। कोई घर का आदमी, उसे डायरेक्टर बना दिया है। अभी आपने पढ़ा एक रेड में, उनके घर के ड्राइवर वगैरह थे जो कानपुर में रेड हुई है, जी सर। हैं? और जी सर। देखा जी आपने सर। वो उनके नाम से सेल हो रही है, टर्नओवर हो रही है 200 करोड़ की। जी जी जी। आपने सुना होगा टीवी पे। जी तो अगर वो इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो कहीं ना कहीं इंटीमेट करना पड़ेगा। तो अब वो लोग क्यों इन्वॉल्व होंगे। अब वो अपना आधार नहीं देंगे, उसको अपनी साइन करके चेक बुक नहीं देंगे। ठीक है, जब वो समझ। एक बार इन्वेस्टिगेशन में अंदर चले गए, अंदर उनको सजा हो जाएगी, तो वैसे ही लोगों को पता लग जाएगा कि भैया हमें ये काम नहीं करना है, हमारे मालिकों ने गलत काम कर रखा है, हमारे को इन्वॉल्व कर रखा है और मजे खुद ले रहे हैं। तो आज की डेट में मुद्दे की बात है, कोई भी आदमी डायरेक्टर का काम करता है या सेक्रेटरी बनता है, कंपनी सेक्रेटरी बनता है कंपनी में, या पार्टनर बनता है एलएलपी में, या एनी हम्म, सिमिलर पोजीशन इन एनी अदर कंपनी एलएलपी, और वो एक हम्म, एम्प्लॉई नहीं है, हम्म, मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है,
तो उसको अपनी रिपोर्टिंग एफआईयू को देनी है, अगर हम करेक्ट एक्सक्लूजन और इन दोनों को साथ साथ पढ़ते करेक्ट भाई। ये देखिए, हम खाली देखिए क्या होता है, बहुत से बिजनेस ही ऐसे हैं, आप ये समझिए, मैं ट्रेड का नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत से बिजनेस ही ऐसे हैं जहां इतनी कंप्लायंस है, तो जो मालिक है, शेयर होल्डर है, वो एग्जीक्यूशन में नहीं आता, वो जी डायरेक्टर सर। नहीं बनता, वो एमडी भी नहीं बनता, ना वो इनकम टैक्स की रिटर्न साइन करता, ना वो जो ट्रांजेक्शन डे बाई डे हो रहे हैं वो करता, और उसमें वो डायरेक्टर और को बना लेता है, 10-10 लाख रुपए सैलरी देता है, 5-5 लाख रुपए सैलरी देता है। कल के दिन जब फ्रॉड डिटेक्ट होता है, चाहे वो कोई सी भी अथॉरिटी करती है, तब जब वो प्रॉब्लम में आते हैं, तो वहां की जो इंफॉर्मेशन है वो उनको हेल्प करती है। जी सर। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। जी सर। ये क्या है? दिस इज एविडेंस कलेक्टिंग मैकेनिज्म। ये गवर्नमेंट ने क्या डेवलप किया है? दिस इज एविडेंस कलेक्ट, गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग एविडेंस टू इन्वेस्टिगेट जी कि सर। ये पीएमएलए की मनी लॉन्ड्रिंग कहां हो रहा है, टू कर्व दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो नहीं होनी चाहिए एक्ट के मुताबिक, जो इनडायरेक्टली लोग इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप डेफिनेशन पढ़िए ना सेक्शन 3 की, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब हम इनडायरेक्टली कहते हैं, वी एनलार्ज द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। जी सर। जी सर। जी सर। अब सर इसके अलावा अगला, एनी एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशन, बेसिकली करेक्ट। अब आ गया, प्रोवाइडिंग अ प्रोफेशन आ गया। रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस एड्रेस, accommodation, correspondence, administrative address for a company, LLP or trust. इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस उसने दिल्ली में खोल लिया, और बाकी कंपनी नहीं है, कंपनी फॉरेन से में है, कहीं दुबई बैठे हैं, कहीं और किसी कंट्री बैठे हैं। यहाँ एक प्रोफेशनल ने, या किसी वो प्रोफेशनल नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, और उसके एड्रेस को सब चीजें मैनेज कर रहा है, और वहां उसी का जवाब दे रहा है, तो दैट फेलो इज इन्वॉल्व। ही हैज टू रिपोर्ट दैट आई एम लुकिंग आफ्टर दिस पर्सन, ही हिमसेल्फ सुमोटो, ही हैज टू रिपोर्ट इसमें अंडर सेक्शन सिर्फ 12। इसमें सिर्फ एक एक्सक्लूजन दिया, एनी एक्टिविटी दैट इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ लीज, सब सर लीज, ये सर टेनेंसी। लीज क्यों कहा है? सर लीज क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है, वो तो किराएदार है। दैट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, उसको रिमूव कर दिया है। और लेकिन एंड जी जी अगर जी। मैं अपना ऑफिस, मेरा ऑफिस है कनॉट प्लेस में है, मेरा ऑफिस है ग्रीन पार्क है, और मैं किसी क्लाइंट को अलाउ कर देता हूँ, और वहां 100 कंपनियों की चिट्ठियां आ रही हैं वहां है, और मैं उनके, मेरा स्टाफ ही मैं उनका जवाब दे रहा है, तो क्लाइंट की मैं हेल्प कर रहा हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं इस मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे बस अपना इसमें नाम तो देना ही पड़ेगा। जी, एंड इसमें बस ये लिखा है कि कैरिड आउट ऑन अ लीज एंड कंसिडरेशन इज सब्जेक्टेड टू डिडक्शन ऑफ टीडीएस अंडर 194I। अब सर इसने सही कह दिया सही। टीडीएस कट रहा है और लीज है तो ठीक है। मेरा सर सिंपल सा वो क्यों क्वेश्चन है? है सर, टीडीएस के लिए हाँ, एक लिमिट होती है 2,40,000 या 1,80, आई मे बी मिस्टेकन। अगर मैंने 10,000 महीना किसी को किराए पे दे दिया जो जेन्युइनली यहाँ का रेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे, हाँ, हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए में रेंट होता है, 10,000 में महीने का भी रेंट हो सकता है किसी चीज का, उसकी नहीं देखिए, अमाउंट बनती है 1,20,000, उस पर टीडीएस नहीं लगता। लेकिन हाँ, दैट इज इस कैरिड आउट बाय वे ऑफ अ रजिस्टर्ड, दैट इज इसे कैरिड कहा आउट बाय वे जाए, ऑफ लीज। इसको कहा जाएगा कामोफ्लेज ट्रांजेक्शन, मतलब यू आर मैनिपुलेटिंग द ट्रांजेक्शन टू अवॉइड द कंप्लायंस। लेकिन सर अगर मान लीजिए सही में सही महीने में 10,000 रुपये लीज है किसी तो चीज सही की। में अगर अगर 10,000 है, देन देर इज नो प्रॉब्लम। अगर तुमने 10,000 किया है उसको कि भैया बाकी तो मुझे कैश दे दियो, 10,000 रख लेते हैं, मैं रिपोर्टिंग एंटिटी में नहीं आऊंगा, तब तो यार गवर्नमेंट गलत नहीं है ना, मैं ही गलत हूँ। तो बेसिकली टीडीएस कटना भी जरूरी है, अगर टीडीएस नहीं कटा तो आप रिपोर्टिंग एंटिटी में आ गए, भाई अगर आपने टीडीएस तो अपना। किस लिए, आप देखिए पारस जी, टीडीएस किस लिए बना है? इफ लैंडलॉर्ड इज डिडक्टिंग द टीडीएस व्हाइल पेइंग द रेंट, इसका जी मतलब क्या है? टीडीएस इज डिडक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु इज अर्निंग द इनकम, एंड द पर्सन हु इज मेकिंग द, हु इज कंट्रीब्यूटिंग टू दैट इनकम, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है वो टीडीएस काट रहा है, किराएदार मकान मालिक को दे रहा है वो टीडीएस काट के जमा कर रहा है। टीडीएस का पर्पज दूसरा है, टीडीएस का पर्पज ये भी तुम्हें, इसका टीडीएस का क्या मतलब है? क्यों आज ही टैक्स पे करो? यू पे व्हेन यू अर्न, यू पे व्हेन यू अर्न, भाई गवर्नमेंट शुड बोरो मनी टू फॉर एक्सपेंडिचर,
इसका गवर्नमेंट का मतलब ये है ताकि गवर्नमेंट को टैक्स हाथ के हाथ मिलता रहे। आपने आज उसे 10 लाख रुपए इनकम मिली, मेरे को टीडीएस कट के मिली, इसका मतलब एक सर्टेन अमाउंट मेरी इनकम का काट लिया गया, सर्टेन अमाउंट मेरी इनकम का काट लिया गया, इसलिए काट लिया गया कि ये मुझे टैक्स देना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन, मैं कहीं ना कहीं 40% टीडीएस कटवाता हूं अपनी प्रोफेशनल इनकम पे। इट इज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं। किस लिए 40%? कि अगर मैं 43% कैटेगरी में, जो मैं लास्ट ईयर भी था, उससे पहले साल भी था, उससे पहले भी साल भी था, कि मुझे 42% टैक्स देना पड़ता है, तो मैं कहता हूँ ये तुम मेरा 40% काट, जबकि 10% काटने में खुश है वो, तो मैं कह रहा हूँ काट लो यार तुम, मेरे को तो जो बच रहा है वो वही मेरी फीस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ यस, मैं करता हूं ऐसा, इसलिए करता हूं ऑनेस्टली, मैं तो बोल रहा हूं, इट इज मैटर ऑफ रिकॉर्ड, कि भैया तुम मेरा 40% काट लो, रेगुलर फीस जो मुझे आ रही है भैया ठीक है, तुम मेरी कंसल्टेंसी फर्म, मेरे को अगर कल को लगता है मेरे को ब्याज तो ना लगे, गवर्नमेंट को हाथ के हाथ मिल जाए, मेरी इंटेंशन ये भी है गवर्नमेंट को हाथ के हाथ मिल जाए। अब अमला तो को खुद टीडीएस, बनता होगा, रिफंड ले लेंगे। नहीं रिफंड तो मेरा कभी नहीं बनता, आज तक तो बना नहीं है, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा तो टैक्स देना ही पड़ता है। मैं तो चलिए। सर करोड़ों में टैक्स देता हूँ, कोई ऐसी थोड़ी माइक पे बोल रहा हूँ, ऐसी थोड़ी बोल रहा हूँ। जी सर। मेरा सर पर्पज ये, मैं कोई उसमें टैक्स में वो नहीं करता सर, फुल टैक्स देता हूँ, कोई गलत एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करता। नहीं, मैं बिल्कुल तो ठीक सर सर। मैं खामखा इमोशनल हो गया, अपनी बात बताने लगा। माई पर्पज इज कि देखिए, ये टीडीएस है या एडवांस टैक्स है, इट इज ओनली यू पे व्हेन यू अर्न, ताकि गवर्नमेंट कंटिन्यूअस बेसिस पे फंड्स गवर्नमेंट को मिलता रहे। दैट इज द ओनली इंटेंशन बिहाइंड दिस लेजिस्लेशन। हम ये देखना है, आपने जो बात बताई, आपने उसमें भी एक ट्रांजेक्शन अटका दिया कि साहब अगर है फिर भी वो कर रहा है, तो ये अगर गलत इंटेंशन से कर रहे हैं तो गवर्नमेंट विल गो बाय माय इंटेंशन। If my intention is to manipulate to avoid the compliance, then I am culprit. जी सर, समझ रहा हूँ, जब समझ रहा हूँ। आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, देखा जाए तो। जी सर। नेक्स्ट है सर, एक्टिंग एज अ ट्रस्टी ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रस्ट और परफॉर्मिंग द इक्विवेलेंट फंक्शंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ ट्रस्ट। मतलब आज की ये डेट में देखिए, जो भी आदमी एक ट्रस्टी है ट्रस्ट का, उसको ईडी को बताना पड़ेगा कि भाई साहब मैं इसका ट्रस्टी हूँ। ये देखिए क्यों है, आप देखिए, कोई आदमी पर्सनल ट्रस्ट का ट्रस्टी नहीं बनेगा। जो पर्सनल ट्रस्ट होते हैं, जो बेनिफिशियरी होता है, जिसमें जिसमें प्रॉपर्टी होती है, एक इनकम होती है, फैमिली ट्रस्ट होते, उसमें नहीं बनेगा। ट्रस्टी किस में बनेगा? ट्रस्टी बनेगा कि साहब एक ट्रस्ट बना दिया, उसमें एक स्कूल चला दिया, एक धर्मशाला चला दी, उससे इनकम हो रही है, उसमें डोनेशन आ रहे हैं। अब तो कॉर्पोरेट डोनेशन बंद हो गए, बाकी जी डोनेशन तो आएंगे ही ना। तो ये क्या है, ये क्यों बताना पड़ता है उसे? कहीं ये कन्वर्जन ऑफ कैश टू चेक तो नहीं है? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को हम क्यों बता रहे हैं? एफआईयू क्या है? एफआईयू इज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। एफआईयू ओनली collect evidences from various sources and submit those evidence to the concerned department of the government and they investigate whether PMLA can be invoked or not. That's the intention. सर इसमें एक पॉइंट है, अब बोलो। जैसे मैं 2-3 ट्रस्ट में ट्रस्टी हूँ, तो ओके, क्या मेरे को रिपोर्ट करना चाहिए? यस। कौन सा ट्रस्ट है? फैमिली ट्रस्ट तो होगा नहीं वो। नहीं, अगर सेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल और एक दो ऐसे सोशल कॉज के ट्रस्ट हैं। हाँ, तो करना चाहिए आपको। सोशल कॉज में फंड्स कहां से आ रहे हैं? मेनली एक्टिविटी पाइए क्या है। पीएमएलए कहां होगा? पीएमएलए कहां होगा? जैसे मैंने आपको एक डॉक्टर, आपने हॉस्पिटल का नाम दिया, मैंने आपको डॉक्टर की एग्जांपल दी थी, डॉक्टर साहब अंदर है, किडनी बेचने खरीदने का काम कर रहे थे, कहने के लिए वो एमबीबीएस डॉक्टर है, अब अंदर है बेचारा। अब किसकी किडनी बदली उसने? प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और उसकी वाइफ की, वो भी प्रोफेसर है, फिर भी डॉक्टर साहब अंदर है। क्यों अंदर है? क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग में काम कर रहे हैं। ये सर मनी लॉन्ड्रिंग में इसीलिए तो आए हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इसीलिए तो नोटिफाई किया है, और किसी एक्ट में क्यों नहीं कर दिया? जी अब सर। सर जैसे इसमें ऊपर लिखा है कि व्हेन कैरिड आउट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो हाँ ट्रस्टी बनना मेरा बिजनेस तो है नहीं, वो तो मैंने पर्सनल कैपेसिटी में एज अ सोशल कॉज किया है, क्या तो भी? सर, वो इसका उसके पीछे इंटेंशन ये होती है कि अगर आप कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है। अगर आप किसी क्लाइंट को सपोर्ट कर रहे हैं किसी एक्टिविटी में, ये इसलिए बना, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपकी जो सपोर्ट है, वेदर इट लीड्स टू लॉन्ड्रिंग और नॉट, वेदर इट लीड्स टू एनी क्राइम और नॉट, ये जी पर्पज है। सर। जी सर। बट और वो भी रिपोर्ट मेरे मनी को करना लॉन्ड्रिंग। चाहिए, बट रिपोर्ट करना चाहिए। 100%। क्या बिगड़ रहा है रिपोर्ट करने में? ठीक जी ठीक है। सर।
और लास्ट क्लॉज है एक्टिंग एज अ नॉमिनी शेयर होल्डर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। यानी जो बड़ी बड़ी यस कंपनियों में नॉमिनी शेयर होल्डर नहीं, नॉमिनी शेयर होल्डर वो हुआ ना कि जैसे वो हु इज रिप्रेजेंटिंग समबडी। सर इससे ये क्या क्या होता है होता है, कि देखिए रिप्रेजेंटिंग समबडी, नॉमिनी, आपने बिल्कुल सही कहा। नॉमिनी मे बी बेनिफिशियरी, मे नॉट बी बेनिफिशियरी। जी सर। नॉमिनी नॉमिनी फंक्शन, नॉमिनी पोजीशन इज वेरी फिड्यूसरी। जी ही सर। वर्क्स अंडर ट्रस्ट, वो ट्रस्ट में काम करता है नॉमिनी, तो बेसिकली है ना। इन तीनों को कवर कर दिया। तो अब इसमें यस, एक्सक्लूड जैसे हमने, हाँ जी, तो अपने ने अब जैसे, देखिए, जी सर आप कीजिए, आप सॉरी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये सब चीजें तो हैं। आप सेक्शन 14 पे आ जाइए, जिसमें ये कहा है कि भाई आपके ऊपर कोई सिविल क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी। जी सर। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सिविल और क्रिमिनल एक्टिविटी ये नहीं है कि आपके अगेंस्ट पीएमएलए अथॉरिटी आपको नहीं पकड़ सकती। ये वो स्टेटरी प्रोटेक्शन नहीं है। स्टेटरी जी सर। प्रोटेक्शन का मतलब है जिसकी इंफॉर्मेशन, जो इफेक्टेड पार्टी है मेरा क्लाइंट, या जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने सबमिट करी है, मैंडेटरी जो मेरी लीगल लाइबिलिटी है सबमिट करना, वो जी मेरे सर। को नहीं फंसा सकता कि साहब आप सीए हैं, आपने मेरी इंफॉर्मेशन कैसे डाइवर्स कर दी, मैं तो आपकी सीए इंस्टीट्यूट में कंप्लेंट फाइल करूंगा। तो मैं उसमें, मुझे स्टेटरी प्रोटेक्शन है, सिर्फ उसमें है। मेरी पोजीशन जो फिड्यूसरी इफेक्ट हो रही है उसमें स्टेटरी प्रोटेक्शन है, ना कि इस बात में स्टेटरी प्रोटेक्शन है कि मुझे मनी लॉन्ड्रिंग वाले कुछ नहीं कह सकते, मुझे इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन वाले कुछ नहीं कह सकते, मुझे सीबीआई कुछ नहीं कह सकती, ऐसा कुछ नहीं। समझ गया, मैं समझ गया। मतलब अगर कोई सीए रिपोर्ट कर देगा कि मैंने ये क्लाइंट का आईपीओ फंडिंग करवाई, तो कल को क्लाइंट का है कि भैया तुम तो कॉन्फिडेंशियलिटी से बाउंड थे, तो वहां पे मुझे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रोटेक्ट करता है कि आपको मैं प्रोटेक्ट करता हूँ कि आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। जी करेक्ट, सर, हमने गलत सही समझा? ठीक सर, बिल्कुल थैंक सही यू। सही अब सर इसमें समझ, चार एब्सोल्युटली। एक्सक्लूजन हैं, हमने मोटा मोटी पहली वाली तो कवर कर ही ली है, एक्टिविटी हम्म कैरिड आउट ऑन लीज। दूसरी वाली भी हम्म हमने कवर कर ली है। तीसरी हम्म एक्टिविटी जो हम सब के लिए बड़ी रेलेवेंट है वो ये है, एन हम्म एक्टिविटी कैरिड आउट बाय सीए, एडवोकेट, हम्म सीएस और हम्म सीडब्ल्यूए who is हम्म engaged in formation of a company to the extent of filing a declaration required under clause B of subsection 1 of subsection 7 of Companies Act 2013। हम्म जो ठीक है। आप इस पे सर कुछ बताना चाहेंगे हमें प्लीज? नहीं नहीं, आप बोलिए, इसमें तो जनरल है, इसमें तो क्लियरली, इसमें तो सेंटेंस, इसमें लैंग्वेज में ही क्लैरिटी है, इसमें कुछ समझने की जरूरत क्या है, आप बताइए बिल्कुल इसको। सर, इसमें जो मैं समझाऊं कि जो सीए जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन का कागज साइन करते हैं, चाहे एमओए को सर्टिफाई कर रहे हैं या नीचे जो आरओसी में फॉर्म जाता है उसमें अपना डीएससी लगाते हैं कि मैंने वेरीफाई कर लिया कि सारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ जो मतलब डॉक्यूमेंट जाने चाहिए थे वो सारे प्रॉपर है या नहीं है। अगर कोई सीए ये डिक्लेरेशन दे रहा है या एमओए एओए साइन कर रहा है, तो ही विल नॉट बिकम अ रिपोर्टिंग एंटिटी टू दिस वेरी ट्रू, एक्सटेंट ओनली। वेरी गुड, इसके वेरी अलावा वो गुड, कोई वेरी और गुड, एक्टिविटी करेगा तो वो कवर हो जाएगा। वेरी गुड, 100% करेक्ट। आगे चलो। चलिए सर, बट सर थैंक यू। इसमें एलएलपी फॉर्मेशन के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिली, सिर्फ कंपनी फॉर्मेशन के लिए मिली है। नहीं नहीं, एलएलपी नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर एलएलपी भी कोई इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है, आप इंटीमेट कर भी एक एडिशनल पॉइंट भी कर देते हैं अपने बचाव के लिए, व्हाट इज रॉन्ग इन इट। हाँ समझ रॉन्ग नहीं गया, है। समझ गया। तो अपन अब अगली बारी ध्यान रखेंगे कि अपने ने अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेशन की है प्रोफेशनल कैपेसिटी में, वहां हम बच गए, लेकिन यहाँ पे एलएलपी में वी हैव टू रिपोर्ट। यस, और कई हमने ट्रस्ट बनाई, अब इसका इम्प्लीकेशन ये भी है, हमने ट्रस्ट बनाई, ये बनाई, सब कुछ किया। सर अब तो एक मतलब रिपोर्ट कार्ड की तरह हमें अपना ईडी को रिपोर्ट कार्ड भेजनी पड़ेगी कि इस साल हमने ये काम किया, भाई साहब आपको कोई सस्पिशियस लगे तो जाके पकड़ लीजिए। सर कंक्लूजन में एक चीज कहूंगा मैं, एट जी लास्ट, सर। वी हैव टू बी अवर ओन फ्रेंड, वी शुड नॉट बी अवर ओन एनिमी। जी और सर। वैसे भी मैं बताऊं, जिंदगी में राइज भी हम तभी करते हैं जब हम अपन में दोस्त होते हैं। जी सर। और अगर हम कहीं भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं, शॉर्टकट तो मार जाते हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं होती है, उसमें जी सर। हैप्पीनेस नहीं होती है, जी उसमें सर। हैप्पीनेस नहीं होती है। अगर मेरी प्रोफेशनल फीस भी बढ़ जाती है तो मैं उसे ग्रोथ नहीं मानता, मैं मैं समझ उसे रहा एक हूँ, हैप्पीनेस नहीं मानता। समझ रहा हूँ सर, टेंशन रहती वो है। हुई है। हाँ, समझ गया सर। जैसे अब हमने दोनों स्कोप और नोटिफिकेशन की पढ़ ली और आपने बहुत अच्छे से पूरा एक क्रक्स हमें दे दिया है, इसके बाद अब हम
कहेंगे कि आप क्या ब्रीफ में सेक्शन 12, 13, 14 जो इससे डील करते हैं उसके बारे में अगर कुछ बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए नॉन कंप्लायंस होती है तो क्या पेनल्टी लग सकती है, उस बारे में अगर कुछ लाइट देना चाहेंगे, या हमें सर एज पेनल्टी सर पेनल्टी ईच ट्रांजेक्शन होती है, ये 10,000 टू 1 लाख। लेकिन ये सब चीजें तो एक क्लरिकल चीज है पढ़ने की, ये कोई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने बोल रहा हूँ। जी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये पढ़ाने की चीज नहीं है। जी सर। बेसिक चीज समझने की इसलिए कि ये है कि जो पीएमएलए है, जिस जी वजह से ये नोटिफिकेशन आए हैं, जी ये कैसे कहां से कहां तक इफेक्ट होता है, जबकि 1 जुलाई 2005 में आया है। मैंने जी पहले भी क्लेरिफाई किया, फिर दोबारा क्लेरिफाई कर कि 1 जुलाई 2005 में इस एक्ट का जन्म हुआ। बट हाउ इट हैज एन इफेक्ट with retrospective, and this is not retrospectivity under the law, it is out of the judicial pronouncement के दो एक्सप्लेनेशन, एक क्लॉज, दो क्लॉज के डाली गई है एक एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, और जिसमें जी साफ साफ ये कहा गया है, साफ साफ ये कहा गया है कि इन केस अगर जो आईपीसी में सेक्शन जो पहले भी था, जो क्राइम पहले भी था, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस 1 जुलाई 2005 से पहले भी था, वहां से, और पैसे वो नहीं लेता, और पैसे वो लेता है और उसके बाद में लेता है 1 जुलाई 2005 के बाद, तो हम सर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है लॉन्ड्रिंग। जी सर, समझ गया सर। वो कंटिन्यू, जबकि आप कह सकते हो कि साहब इसने तो सन 2000 में क्राइम करा है और 2000 में पैसा ले लिया था इसने, अब वो 2010 में अगर यूज कर रहा है, इसीलिए तो क्लॉज डाली गई है। जी सर, हमें हाँ इस सर। चीज को समझना है, तभी जी हमें सर, ये पता लगे कि हम इन्वॉल्व हो या ना हो। हम इन्वॉल्व तो नहीं है, या हमारा क्लाइंट तो इन्वॉल्व नहीं है, हम उसे एडवाइस कर सके भैया ये काम मत करो। समझ गया, उन समझ चीजों गया। को सही मानों में तो हमें एक्ट को समझना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सही सर। तो सर कोई लास्ट एडवाइस एज प्रोफेशनल्स, हमें रिपोर्टिंग किस तरीके से अपना फॉर्मेट्स बनाने चाहिए, किस तरीके से हमें अपना अपना सेटअप किस तरीके से इसके इनके आने के बाद हमें करना सर चाहिए? आप रिपोर्ट करो, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, जो जो आप काम करते जा रहे हैं नोट करते रहो, और जैसे भी उसमें कहा है रूल्स में देखेंगे आप, क्वार्टरली, एनुअली, मंथली, जो भी आपको करना है इंटीमेट, आप इंटीमेट करते रहो, ऑनलाइन सब इंटीमेशन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा सर, जैसे बैंकों के ऊपर होता है कि वो बैंक हर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं करता, सिर्फ सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट देता है जो बैंक को सस्पिशियस रखती है, तो हर क्या? एक तो करेगा भी नहीं ना। हाँ जी। तो अब क्या हम भी जो काम कर रहे हैं, जो हमारी दो नोटिफिकेशंस है, नोटिफिकेशन 1 और नोटिफिकेशन 2, एक 3 की और एक 9 की, क्या हमें सारी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करना है या सिर्फ सस्पिशियस करना है जैसे बैंक करता था? इसमें इसमें देखिए, सस्पिशियस वर्ड जो है, आप हमारे लिए, हमें ये छूट नहीं दी गई है। हमें नहीं जो दी गई। फाइनेंशियल जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है आप पढ़िए, उसमें ये नहीं लिखा है सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जी सर। उसमें ये लिखा है कि अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व हैं, जी सर। सस्पिशियस वो देखेंगे है या नहीं है, वो दैट यू हैव टू लीव दैट वर्ड टू फॉर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। हमें डेटा सस्पिशियस देना वो है। देखेंगे, हमारा काम है इंटीमेट करना, हम केवल हमने ये काम किया है, कर लो इंटीमेट, हमारा ये काम है, वी हैव टू रिपोर्ट द ट्रांजेक्शन, जी सर। जी सर। दैट्स थैंक यू। ऑल। थैंक यू सो तो मच सर। बेसिकली एक्ट को समझना है, एक्ट के जी, ऊपर समझ सेमिनार गया। करिए, एक्ट के को डेप्थ में समझिए, इसके जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट समझिए, जी सर। एक सेक्शन को समझने का प्रयास करिए, तब आप अपने आप को बचा पाएंगे। खाली नोटिफिकेशन पढ़ने से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात सर। तो क्लेरिकल का काम है, ये तो क्लेरिकल काम है, एक लड़का कर देगा, ये थोड़ी हमारे करने का काम। हमें बिल्कुल तो ठीक एक्ट को बात। समझना है, क्लाइंट तो हमारे पास आएगा, हमें उसे कहना है कि भैया तू जा। अभी कल मेरे से एक बहुत बड़े सीए पूछने लगे, ये एग्जाम्पल बड़े आपके काम की है, कि साहब 50 करोड़ का एक को शेयर में लॉस हो गया, और वो उसके दूसरे बिजनेसमैन के पास 50 करोड़ है कंपनी में, और उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट कर लिया बैक डेट से। तो मैंने कहा स्टैम्प पेपर जहां से खरीदा है उसको बुला लेंगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाले। बोले नहीं, उन्होंने एक काम किया, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से आर्बिट्रेशन करा लिया। मैंने कहा आर्बिट्रेशन वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं है, आर्बिट्रेशन इस बात के ऊपर होगा कि भाई तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे, मेरे पैसे निकलते हैं। बोले हाँ, इसी बात पे। मैंने कहा तो आर्बिट्रेशन इस बात की मोहर नहीं लगाता कि आईटीओ, इनकम टैक्स अथॉरिटी उसको ट्रांजेक्शन मान ले। मैंने कहा इसमें पेनल्टी वेनल्टी, विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स, सारी चीज हो जाएंगी, और तुम मना कर दो अपने क्लाइंट से कि ये काम, ये सलाह मुझसे मत मांगो। तब उसने मना किया।
तो समझ हमें गया ये भी सर। तो पता हो, यही तो मैं कह रहा हूँ, हमें बेसिकली एक्ट को समझना है। जी सर, मैं जी सर समझ गया सर। पारस जी, बिंदल जी, समझ आई कोई बात? बिल्कुल सर, आपने एकदम स्पष्ट रूप से सारी बातें विद एग्जाम्पल, विद एक्सपीरियंस एंड विद नॉलेज एंड विद रेफरेंस टू रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एकदम क्लियर कर दिया है। आई डोंट थिंक हमें कोई भी एम्बिगुइटी रहेगी। इसके बावजूद भी अगर हमारे किसी मेंबर को कभी कोई इशू आएगा तो सर हम आपसे थोड़ा सा फिर मदद मोस्ट चाहेंगे। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, ज्वाइनिंग अस टुडे थैंक सर। यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।